Hello, Namaskar. This is CVR English, and it's time to roll the Inside India live news with me, Anukriti Sharma. At the Kautilya Economic Conclave, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has highlighted India's proactive engagement in all international diplomacy regarding the Ukraine conflict. He noted that Prime Minister Modi ji has already met President Zelensky 3 times and spoken with President Putin frequently, emphasizing India's unique position to communicate with both the leaders. Dr. Jaishankar expressed the aim of finding a common ground for both the countries and potential pathways to improve the situation. On the Middle East conflict, he stressed that India has not been uninvolved and has also facilitated communication between countries that typically do not engage with each other. He pointed out that the global south is now feeling the brunt of a stressed global economy and society, and they are looking for action. Dr. Jaishankar underscored India's understanding of these concerns and also its ability to articulate them, which has garnered support for Indian initiatives, especially visible at the United Nations. He concluded by asserting that India is now seen as a responsible player in the global polity, reflecting upon the country's own evolution. Look, and a certain solidarity which has come over a period of years, it makes sense to say, well, I'm in this game all by myself and I'll cut the best deals I can. I mean, obviously, it's in the nature of things that every nation naturally prioritizes its interests, but I would argue that global south itself has great value on a range of issues. Again, I don't have to position myself as a leader of the global south. You are part of a collective, and if in the collective you are a trusted member of the collective and you are a articulate member of the collective, I think people expect you to do a little bit more. Again, I'm not entirely sure that some of the answers can be found bilaterally. So I would argue that yes, there are, forget bilateral, there are a whole range of unilateral solutions. There are clearly bilateral solutions. I mean, this month, for example, we will have our India-Germany consultations, and in the India-Germany agenda, climate actions and climate-related projects have a big there's a certain salience. It's to me not either or, and I'm really not comfortable with the idea that you walk away from the global south. On the contrary, I see value. On AI, yes, there are already discussions about guardrails. I think governance may be a bit over the horizon right now, but clearly something so profound is going to require, at the minimum, some kind of international understanding, outlook, and a certain solidarity which has come over a period of years. It makes sense to say, well, I'm in this game all by myself and I'll cut the best deals I can. I mean, obviously, it's in the nature of things that every nation naturally prioritizes its interests, but I would argue that global south itself has great value on a range of issues. Again, I don't have to position myself as a leader of the global south. You are part of a collective, and if in the collective you are a trusted member of the collective and you are a articulate member of the collective, I think people expect you to do a little bit more. Again, I'm not entirely sure that some of the answers can be found bilaterally. So I would argue that yes, there are, forget bilateral, there are a whole range of unilateral solutions. There are clearly bilateral solutions. I mean, this month, for example, we will have our India-Germany consultations, and in the India-Germany agenda, climate actions and climate-related projects have a big there's a certain salience.
it's to me not either or, and I'm really not comfortable with the idea that you walk away from the global south. On the contrary, I see value. On AI, yes, there are already discussions about guardrails. I think governance may be a bit over the horizon right now, but clearly something so profound is going to require, at the minimum, some kind of international understanding, outlook, and a certain. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has accused the opposition of spreading false information about government initiatives such as Ladki Bahin scheme. He stated that the government is now actively depositing money into all the beneficiaries' accounts and highlighted that the Bombay High Court has rejected the opposition's petition against these schemes, ruling in favor of the government. Shinde has further claimed that the opposition has rather engaged in corruption, referencing the Khichdi scam and other schemes as examples of their primary misconduct. Take a look. जागर सुरू आहे आणि या लाडक्या बहिणींच्या रूपामध्ये इथं दुर्गा शक्ती अवतरलेली आहे. सगळीकडे माझ्या भगिनी बहिणी, लाडक्या बहिणी एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि आपला महाराष्ट्र राजमाता जिजाऊंचा, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा, पुण्यश्लोक अहिल्या देवींचा आणि म्हणून अहमदनगरचं नाव आपण अहिल्या देवी नगर केलं आणि परवा केंद्र सरकारने पण त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलं. त्याचबरोबर या ठिकाणी आजचा हा कार्यक्रम जो आहे हा नारी शक्ती, आदिशक्तीचा सन्मान करणारा आहे. आज माझ्या अगोदर आपल्या दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्या ज्या योजना आहेत या योजना याच्याबद्दल माहिती दिली. हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे आणि या सर्वसामान्यांच्या सरकारमध्ये आज आपण जर पाहिलं तर मगाशी मला कलेक्टर साहेबांनी दिलंय की कुठे आहे रे बाबा, महिला सक्षमीकरणाच्या योजनेमध्ये एकूण लाभार्थी 26,51,000 आहेत. त्यापैकी महिला लाभार्थी आहेत 23,33,000. म्हणजे 88% माझ्या महिला भगिनी आहेत. आणि म्हणून संभाजीनगर च्या सर्व अधिकाऱ्यांना पण मी मनापासून धन्यवाद देतो. हे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या ठिकाणी सुरू केल्यानंतर या विभागाने माझी आपली छोटी बहीण आदिती तटकरे, त्यांचा विभाग अनुप कुमार असतील, या सर्वांनी या ठिकाणी एवढ्या जलद गतीने ही योजना सुरू केली की विरोधकांना देखील प्रश्न पडला. त्या अगोदर म्हणत होते की पैसे येणार नाहीत, ही चुनावी जुमला आहे, ही फसवी योजना आहे. आणि जसे पैसे आले तसं म्हणायला लागले पैसे लवकर काढून घ्या, काढून घ्या, नाही तर सरकार काढून घेईल. अरे बाबा, हे देणारं सरकार आहे, हे घेणारं नाही. ही देना बँक आहे, ही लेना बँक नाही. पूर्वी होती, पूर्वीचं सरकार हप्ते घेणारं होतं. अगदी गृहमंत्री पण जे Assam Chief Minister Hemant Biswa Sharma has announced that an election committee meeting is scheduled for today where they will select 3 candidates for each assembly seat. He further added that the parliamentary board will ultimately decide who will receive those tickets. Sharma also commented on the Jharkhand Mukti Morcha or the JMM stating, and I am quoting, "Whatever JMM might say,
people know that Pradhan Mantri Modi does what he says, unquote, reinforcing confidence in the Prime Minister's commitment to the nation. Take a look. आज हमारे चुनाव कमेटी का बैठक होगा। हम लोग कोशिश करेगा कि 81 सीट का ही पैनल बने और एक सीट का विपरीत हमने 3 नामों को सिलेक्ट करना है और बाकी ऊपर जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड सिद्धांत लेगा कि वो 3 में से कौन एक को मिला जाए या 3 का बाहर से भी किसी को लाया जाए। तो पहला जो हमारा एक प्रक्रिया होते है रायशुमारी हो चुका है और आज हमारा चुनाव कमेटी का बैठक है। समय से थोड़ा हम लोग आगे ही जा रहा हूँ। सर, आपसे बात हुई थी 1 अगस्त को, तो आपने कहा था पहली सूची जो है उन सीटों की होगी जो आरक्षित है, जल्द होगी। देखिए हमारे पहले लक्ष्य था कि हम थोड़े सीट पहले डिक्लेयर करें, लेकिन परिस्थितियां बदले और अभी हमारा लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों में अनाउंस कर पाऊंगा। कल दिल्ली में भी एक बैठक है, उसका बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा। मेरा लगता है कि विद इन 1 वीक पहला सूची आ जाएगा। सर, हरियाणा का इलेक्शन संपन्न हो गया, क्या उम्मीद करते हैं जे.एन.के हरियाणा? देखिए हरियाणा और जे.एन.के का चुनाव में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, उनका परिस्थितियों के बारे में बहुत ज्यादा मेरा मालूम नहीं है, लेकिन मेरा लगता है कि हमारे जो जम्मू रीजन है हम लोग बहुत अच्छा करेगा। हरियाणा में भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा। वो योजना को लेकर जो फॉर्म भराए जा रहे हैं उसमें तो भीड़ उमड़ रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं और एक फॉर्म छपवाने की व्यवस्था? मेरा जो अनुमान है लगभग 80 लाख माता और दीदी ये फॉर्म भरेगा, जो हमारा उम्मीद है। तो जितना सही अपना फॉर्म दिया जाएगा और जो लोग फॉर्म भरेगा वो लोगों का नाम भी पार्टी रजिस्टर करके रखेगा। सर, इस पंचपुरम को सरपंच बता रही है, सरपंच हमारी योजनाओं को देखिए कौन सा योजना है बताइए, मैं बता देता हूँ कौन सा योजना का कॉपी पे। माया, अगर मैं बोलो माया योजना आप छत्तीसगढ़ से बीजेपी से ही कॉपी पेस्ट किया है, अगर मैं बोलो आप माया योजना असम से कॉपी पेस्ट किया है, अगर मैं बोलो आप माया योजना आपने मध्य प्रदेश से कॉपी पेस्ट किया है, तब उसका जवाब क्या होगा? अगर आपने हमसे कॉपी पेस्ट नहीं किया होता था तब तो 4 साल पहले कर देते थे। और National Conference's chief Farooq Abdullah has stated that he is confident that the National Conference and the Congress together will comfortably form the government. He has congratulated the PDP, expressing his openness to their support for this alliance. Abdullah further emphasized the need to end hatred and to maintain the integration of Jammu and Kashmir, noting that all the parties are aligned on this important path. आज हम मजहबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के सामने आपको झुकना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा अहम प्यारे उनके सिर्फ अल्लाह उस ताकत को पुकारो, उस ताकत को अपने दिल में बिठाओ और मोहब्बत की बात करो। मैंने इतना कहा, मैं इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं तो मैंने एग्जिट पोल पे कुछ नहीं कहना। मैंने एग्जिट पोल पहले भी देखे हैं, कभी ऊंचा होता है कभी नीचे होता है। 8 तारीख को सारा पोल आपके सामने आ जाएगा, बक्से खुलेंगे, पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। अगर मेरे पास जादुई चिराग होता तो मैं उस जिन को लाता, कहता जिन बता कितने हम जीतेंगे कितने वो जीतेंगे। मगर इतना जानता जरूर हूं कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत अच्छे
आ जाएगी, बहुमत से आ जाएगी। तो सर उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, उनको सपोर्ट कर देंगे एनसी और कांग्रेस को। मुबारक हो उनको, अल्लाह करे। हम लोग सब एक ही राह पे चल रहे हैं कि नफरत को हमने खत्म करना है और जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखना है, हर हालत में इकट्ठे रखना है। पंजाब के फॉर्मर सीएम इंजीनियर रशीद से मिले हैं, किस तरह से देखते हैं इस देखिए वो क्यों मिले, काहे को मिले, फारूक अब्दुल्ला को तो पता नहीं है, उनके दोस्त हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। सर मीरबाज उमर फारूक ने कहा है कि पाकिस्तान से बात। Congress MP Kumari Selja has expressed her confidence in the upcoming elections, stating that, according to her assessment, Congress will secure more than 60 seats. She noted that Congress is increasingly being viewed as a highly viable alternative to BJP, highlighting significant anti-incumbency sentiments, particularly among the weaker sections who felt suppressed. Selja has criticized the Bharatiya Janata Party for lacking connection with the common people and has credited Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra as a turning point for the Congress party. Regarding calls for a Dalit or woman chief minister for Haryana, she has mentioned that such decisions always rest with the party's high command and expressed her belief that all relevant factors would be taken into account. कई चीजें हो जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी और एंटी इनकम्बेंसी का एक ये भी मुद्दा था कि खास तौर से जो वीकर सेक्शन है उसको लगा कि किसी न किसी तरह से ये हमको दबाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आपने देखा, विधानसभा में और इश्यूज भी बहुत आ गए जो राज्य में, जैसा मैंने कहा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जो हमारा गरीब तबका है, शोषित वर्ग है, उनको लगा कि हमारे से कोई सरोकार नहीं है, जो किसान है, मजदूर है, उनको सब पीछे आपने देखा कि सब नाराज हो रहे थे। और नाराज क्यों हो रहे थे? क्योंकि गलत पॉलिसी। और एक चीज और भी थी कि भाजपा के साथ कभी कोई कनेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं रहा आम लोगों का। और इसके ऊपर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि जमीन पर काम कर रहे, हमारे वर्कर जमीन पर काम कर रहे, सही मैसेजिंग कर रहे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो स्रोत रहा वो जब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस समय से कांग्रेस पार्टी को भी और लोगों में भी एक नई उम्मीद आई और कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली। हमारे वर्कर, जो कितने वर्कर राहुल जी से मिले भी, यात्रा में शामिल हुए, तो एक ऐसा कॉमन ग्राउंड मिला कि हमारा नेता हमारी बात कर रहा है। तो उससे माहौल, देश में भी माहौल बदला और हरियाणा में डेफिनेटली माहौल। के मुताबिक आपकी सरकार बन रही है, क्या रोल कुमारी शैलजा जी का इस सरकार में रहेगा? क्योंकि बार बार खासतौर से आपकी कम्युनिटी हो या लाजल, एक वो भी था कि एक दलित सीएम भी हरियाणा को मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जब सरकार बनेगी तो ये कंसेशन होगा? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक महिला मुख्यमंत्री। महिला मुख्यमंत्री इतनी एक्सपीरियंस्ड, देखो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब बातें हाईकमांड को ही कंसिडर करना होगा। वो ही देखेंगे और वो अपने विवेक से फैसला लेंगे। सारी चीजें हैं और हर पहलू को मुझे विश्वास है कि हाईकमांड इन सब पहलुओं को देखेगा। मैम, एग्जैक्ट डेटा आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसमें दिखा रहे हैं कि 50 से 60 के बीच का नंबर आप लोगों को मिल रहा है। आप एग्जैक्ट कौन सा नंबर आप बताना चाहेंगे कि जो आपके मुझे लगता है कि 60 से ज्यादा आना चाहिए। दोनों चीजें, कई चीजें हो जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी और एंटी इनकम्बेंसी का एक ये भी मुद्दा था कि खास तौर से जो वीकर सेक्शन है उसको लगा कि किसी न किसी तरह से ये हमको दबाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आपने देखा, विधानसभा में और इश्यू। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Singh has stated that proper security arrangements are essential to ensure the safety and the security of the devotees at the Mahakumbh. He emphasized
that the personnel deployed should include the civilians, the volunteers from the various organizations, as well as the Uttar Pradesh police and the home guards. Adityanath has further highlighted the importance of counseling and also training for these volunteers to effectively manage this mega event. He has also announced the unveiling of the Mahakumbh Fair 2025 logo and has urged the Information Department or the ID to display it at every district headquarters, railway stations and airports across the country. The Chief Minister has called viewers for the positive environment, asserting that there should be no place for negativity and that adequate arrangements must be made for the safety of all the attendees. Take a look. मित्रों, मैं आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज यहां पर हमें दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इवेंट प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए आयोजित इन बैठकों के क्रम में मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम लोगों को प्रयागराज में आने, संगम तट पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती और पूजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अक्षय वट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहां पर की है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। मित्रों, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has announced the inauguration of schemes worth approximately 200 crore rupees, along with the laying of foundation stones for future projects in Rudraprayag district, particularly in the Kedarnath Valley. He has emphasized the importance of all these initiatives as major milestones for the region and also expressed his commitment to ensuring the swift progress of these ongoing projects as well. Because speaking about these projects is one thing, implementing these projects is entirely quite another. Dhami has also highlighted the need for safe travel for all the visitors and stressed the importance of supporting local employment for the traders, the hoteliers and the horse mule owners. He assured that any existing issues have been addressed already to facilitate their livelihoods effectively. Take a look at this report.
आज लगभग 200 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया गया है और बहुत सारी योजनाएं आगे के लिए प्रस्तावित की गई हैं। बहुत सारी स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं जो निश्चित रूप से हमारे पूरे इस रुद्रप्रयाग जनपद में और विशेषकर केदार घाटी में विकास के मामले में मील के पत्थर साबित होंगे। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो द्वितीय चरण की हमारी यात्रा चल रही है वो पूरी यात्रा बिना निर्बाध गति के चले, सभी यहाँ पर सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं और यहाँ की चारधाम यात्रा जो हमारी रीढ़ है, जो हमारा जो है केदार धाम सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध धाम है, उस धाम में आने वाले यात्री अपनी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करें, किसी प्रकार का उनको विघ्न बाधा न हो। हमारे व्यापारियों का, रोजगार होटल वालों का, ढाबे वालों का, घोड़े चट्टी वालों का, सारे खच्चर वालों का, सबका काम अच्छा चले, उसके लिए भी जहां भी जो भी परेशानी है उसको सबको दूर किया जाएगा। चुनाव भी आना है केदारनाथ जी में। देखिए, विकास का एक क्रम यहाँ पर केदार घाटी में चला है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। तेजी से केदार धाम जो है नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है। वो विकास का क्रम रुकेगा नहीं। यहाँ की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बनने के बाद ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। When it comes to crime and violence against women and girls in our country, it seems like the news never seems to end, unfortunately. A minor girl allegedly raped and killed in South 24 Parganas, it happens to be a district in West Bengal. The Bharatiya Janata Party leader Bharati Ghosh says, and I'm quoting here, "You saw what the police did in the RG car rape and murder case. They destroyed all evidence. Here also, when the minor girl went missing and her parents went to the police station for help, no FIR was filed. The police did nothing. The girl was raped and murdered. If less than half of the police present here had tried to even look for the girl, she could probably have been saved. The police are more responsible than the accused, and we are here without arms. So why are the police present here anyway? Why aren't they going after the accused?" Unquote. Take a look. पुलिस तो ऐसा ही करता है। आरजी कोर में हमने देखा, सब एविडेंस गायब कर दिया और पूरा कोशिश जारी था कि असली घटना को कैसे छुपाए। यहाँ भी 10 साल का लड़की जब गायब हुआ, उनके पिता माता थाना में गए, वो FIR नहीं लिया, बाहर नहीं गए, कुछ नहीं किया, लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया। जितना पुलिस यहाँ है उसका आधा से आधा पुलिस तब जाता तो ये हाल नहीं होता लड़की का। ये जो पुलिस अधिकारी है, ये थाना का, कुलतोली थाना का जो IC है, उनका अगेंस्ट में भी FIR होगा और हम हाईकोर्ट में बोलेंगे जितना अपराधी अपराध किया है ये और ज्यादा अपराध किया है, अपराधी को शेल्टर देके और छोटे लड़की बच्ची को नहीं बचा के और अपराध किया है। आज नाटक करने के लिए यहाँ खड़ा है। क्यों नाटक कर रहा है? हम तो कुछ किया नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, बंदूक नहीं है, शॉट नहीं है, लाठी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ क्यों खड़ा है? जो असली अपराधी है उनका पीछे ना जाके यहाँ क्यों खड़ा है? पुलिस सबसे बड़ा अपराधी हो गया पश्चिम बंगाल में और ये शासक दल ये पुलिस को धीरे धीरे एनकरेज कर रहा है। ये पुलिस जिस दिन जाएगा उस दिन सही मात्रा में परिवर्तन आएगा पश्चिम बंगाल में। देखिए, थाना कुलतोली थाना आज हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। 3 लाइन बैरिकेड किया है। हम लोग तो थाना को भांगचूर करने नहीं आए हैं, प्रतिवाद करने आए हैं। आज ये कुलतोली थाना क्यों नहीं काम किया? क्यों नहीं FIR लिया? जब परसों 4 बजे ये लड़की निखोज हुआ तब ये FIR नहीं लिया। पिताजी माताजी को इस तरह से उस तरह, उस तरह से उस तरह सिर्फ नचाया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आज अगर वो लेता, इन्वेस्टिगेशन करता तो आज बच्ची हमारे पास रहते। और हर दिन ये हो रहा है, हर दिन। और हमारा मुख्यमंत्री डांडिया नाच फीता काट रहे, इनॉग्रेशन कर रहे। तो ये राज्य में क्या होगा? हम लोग को CBI चाहिए। पुलिस तो ऐसा ही करता है। आरजी कोर में हमने देखा, सब एविडेंस गायब कर दिया और पूरा कोशिश।
And that brings me to the close of this edition of Inside India Live News with me, Anukriti Sharma. Keep watching CVR English for more news and updates.